मेरे बच्चों, फैराडे के सेकंड लॉ को हम लेके चलते हैं. व्हाट इज फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? नाउ लुक हियर एट दिस पिक्चर. If we are having these two electrolytic solution or these two cell and these two cell are connected in series, how these cell are connected in one terminal positive negative, this positive negative. So positive terminal of a first cell and negative terminal of second cell are connected to battery, and positive and negative are interconnected. So this is a combination known as in series. So when same amount of current is passed through this electrolytic solution, or you can say the electrolytic cell, this is having copper sulfate solution, this is having silver nitrate solution. So here copper will be deposited, here silver will be deposited as cathode. So what is the second law of electrolysis? When same amount of steady current is passed through the solution of different electrolytes connected in series, the amount of substance deposited to each electrode is directly proportional to the chemical equivalent. So suppose small w is the mass of substance and z is the chemical equivalent of that substance. So w is directly proportional to z. So for if we are having here copper, so for copper suppose W1 amount of copper is deposited, or simply you can say here, suppose we are taking this W1, in place of W1 we can write WCU. WCU. So this is amount of Cu. So this is amount of copper deposited at this electrode, and its electrochemical equivalent is Zc. And similarly for silver, amount of silver directly proportional to its chemical equivalence. So from here we can add amount of copper divided by amount of silver is equal to chemical equivalence of copper divided by chemical equivalence of silver. And you know from here that Z is equal to molar mass upon Nf. Molar mass of Nf. Nf is the number of electrons here. Okay. So here we can simply write if the number of mole of electron is same, then Z is equal to here M upon F. If valency of all is same, then we can write here that W1 upon W2 is equal to molar mass M1 upon M2 here also. So this is Faraday's second law. So suppose same amount of current is passed through this copper solution and through this silver, and we take one example here. Suppose here 5.6 gram copper is deposited. So how much silver will get deposited? So we can use this concept. We can use this formula M1 or M2, or we can use this also. So in case of copper, what will be electrochemical equivalence of copper here? In case of copper, ZCU is equal to molar mass of Cu divided by its charge is 2, valency 2 into F. So here molar mass of this Cu is 56 by 2F, and ZAg is equal to molar mass 108 divided by 1 into F. So we can write 108 divided by F. So WCU divided by amount of silver is equal to
जेड सी यू अपॉन जेड ए जी, दैट इज 56 डिवाइड बाई 2f डिवाइडेड बाई 108 बाई f। f से f कैंसिल हो गया यहाँ पर आपका, और ये अमाउंट कितना दिया है, ये 5.6, तो हो जाएगा हमारा 5.6 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 108 और 2 into 108। तो फ्रॉम हियर WAG is equal to 5.6 into 2 into 108 divided by 56. So this will be 0.1 and 108 to the 216. So 221.6. Here it will be 21.6. We can calculate it. So mass of silver is equal to 0.1 into 2 into 108. It is equal to 21.6 gram. So this is the answer. So such type of question may be asked related to Faraday's second law, and also you can find out, suppose charge is given here, so by using Faraday's first law you can find out mass of copper or silver। स्टूडेंट, इससे कनेक्टेड अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में आपके मेटल्स से सॉलिड मेटल्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं जो हम डेली लाइफ में डील करते हैं, एक तो सॉलिड मेटल्स होते हैं जिसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सॉलिड मेटल में, यहाँ पर तो यहाँ चार्ज जो किसके थ्रू फ्लो होता है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, चार्ज को कैरी करने वाले होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो चार्ज को कैरी करने वाले, तो वो क्या होते हैं, वो फ्री आयंस, आपके कैटायंस एंड एनायंस। तो यहाँ पर हमें दोनों को डिस्कस करना है। जैसे ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल। So electrical conductivity to solid metal depend on what factor? Factors affecting conductivity या conductance of metal। कौन कौन से फैक्टर हैं बताएंगे आप? एक तो हो जाएगी लेंथ, वायर की लेंथ। तो जितना ज़्यादा वायर हमारा लंबा होगा या लॉन्ग होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, आप सिंपल वे में सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पाइप है, वाटर पाइप आप लेंगे, ये पाइप है हमारे पास, तो इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे वाटर फ्लो करता है पाइप में, उसी टाइप से हमारे मेटल के अंदर चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और जो चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज के फ्लो करने को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर के फ्लो करने को हम क्या कहते हैं, वाटर के फ्लो करने को भी तो करंट कहते हैं, करंट और वाटर। तो इसी टाइप से आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा हमारा पाइप लंबा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रुकावटें होंगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी या उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर, लेंथ, एरिया, इन सब पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर में हम देखेंगे कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर हुआ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और हमारा जो एल्यूमिनियम है वो बेटर कंडक्टर हुआ। तो उसकी नेचर, मटेरियल की नेचर क्या है,
तीसरा उसके हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी इलेक्ट्रिकल वायर में, ऑपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मीन्स आप वायर का टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर देंगे, आप फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर आपको सर बताएंगे, फिजिक्स के टीचर आपको बताएंगे कि कैसे हम वायर को वहाँ पर ज़्यादा देर तक हम सर्किट में नहीं लगाते हैं, सर्किट को हम की को निकाल कर रखते हैं, की इंसर्ट नहीं करते। तो आजकल गर्मी में हम देखते हैं कि हमारे घरों में लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे कम हो जाती है, लाइट कम हो जाती है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वायर गर्म होने से। बारिश हो जाएगी या मौसम ठंडा होगा तो आपके घर में जो अप्लायंस हैं उनमें आप देखेंगे कि एक अलग ही उनमें जो बल्ब है उनमें ज़्यादा लाइट आती है। आपके घर में जो बाकी जितने अप्लायंस है वो अच्छी स्पीड से चलेंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, कंडक्टिविटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। कब? जब मौसम ठंडा होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। तो ये नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर नीचे डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा ये लेंथ और ये एरिया होगा उस पर भी डिपेंड करता है। उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक उसके लिए, अच्छा यहाँ पर एक और फैक्टर आप ले सकते हैं इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी एक फैक्टर हुआ जिसपे हमारे मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ये किस पे डिपेंड करेगा? और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगी स्टूडेंट? एक तो डिपेंड करेगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी। और दूसरा है हमारे पास उसकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? दो। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं वीक और इनको? जो फुली आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, मैक्सिमम आयनाइजेशन हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो कम 10, 20, 30% आयनाइज होते हैं वो वीक होते हैं। तो हमारे पास एक, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं एसिटिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड की जो कंडक्टेंस है या जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी और इसका कम होगा। इसी टाइप से हम ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की दो टाइप की नेचर होती है स्टूडेंट, कौन कौन सी? एक होती पोलर, पोलर में भी हाईली पोलर, लेस पोलर, और दूसरा हो गया नॉन पोलर। तो आपके पास अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। और तीसरा चौथा जो फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ, टेम्परेचर। यहाँ पर उल्टा होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखिए मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम इसको लेते हैं कि जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें अब हम देखते हैं आगे कि कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पहले हम एक इलेक्ट्रिकल वायर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए उसको कनेक्टेड करते चलेंगे हम लोग।
अब ये जैसे हम लेते हैं इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, सपोज ये इलेक्ट्रिक वायर हमने लिया और इस इलेक्ट्रिक वायर की जो लेंथ है वो हमने लिया है L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है A। तो आपको मालूम है इसमें क्या होता है कि एज पर ओम्स लॉ तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दिस रेजिस्टेंस is inversely proportional to cross section area. So from here we can say that R directly proportional to L and inversely proportional में जितना ज़्यादा ये लॉन्ग वायर होगा या कोई कैनाल होती है बच्चों, कोई नहर है जितनी ज़्यादा लंबी है या कोई पाइप है जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा रुकावटें आएंगी, मीन्स उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, एक पाइप हमारा बिल्कुल नैरो है, एक पाइप वाइड है, एक चौड़ा पाइप है, एक नैरो पाइप है, या एक कैनाल बहुत चौड़ी है, एक कैनाल बहुत ही जो है नैरो है, तो किस में से आप बताएं किस में ज़्यादा रुकावट है जिसमें रेजिस्टेंस की संभावना है? तो जो नैरो होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ से R इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पर ये जो R है ये R हमारा हो गया क्या, R इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक वायर, और रो जो है ये इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम दूसरा नाम लेंगे यहाँ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और ये इसका मतलब ये जो ये रो है ये कब होगा, जब L की वैल्यू, L जो है हमारा अगर हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ और A हमारा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो एक ऐसा वायर जिसकी जो पैरामीटर है, डायमेंशन है, जिसके फिक्स हैं 1 सेंटीमीटर, तब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो इसको रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ये जैसे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं कि हमें सपोज एप्पल ख़रीदनी है, तो एप्पल का रेट क्या, तो रेट मीन्स पर केजी कितने, तो पर केजी वो फिक्स हो गया। 1 केजी का लो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, फिर हमें 4 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी कितने करीब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी टाइप से जो रेजिस्टिविटी है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये पर उसके लिए हुआ, पर सेंटीमीटर के लिए, पर स्क्वायर सेंटीमीटर फिक्स हो गया। ये एक सब्सटेंस के लिए, कॉपर के लिए ये फिक्स हो गया, अलग एक फिक्स वैल्यू रहेगी। वो कॉपर का वायर कहीं पर भी यूज करिए आप, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक सेल लेते हैं बच्चों, जो हमने एक सेल लिया, अगर हमने यहाँ पर हम कंडक्टिविटी सेल अगर हम लेते हैं, तो उस कंडक्टिविटी सेल में जैसे अभी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये, अगर इस सेल को हम यहाँ पर लेते हैं, इस सेल को लेने से क्या होगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और इसकी जो सॉल्यूशन है, इसकी जो ये हम डायमेंशन ले लेते हैं, अगर इसका पूरा यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन अगर 1 सेंटीमीटर है और इसमें सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमने फिक्स ले लिया है 1 मोल पर लीटर, तो उस केस में इस सेल को हम कंडक्टिविटी सेल कहेंगे, हम इसको कहेंगे कंडक्टिविटी सेल। तो अगर आपके पास एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, तो उस कंडक्टिविटी सेल में हम लोग अगर ये कंडक्टिविटी सेल है, 2 इसमें इलेक्ट्रोड हैं, ये सील्ड होता है और इसकी कंसंट्रेशन है सपोज गिवन है 1 मोल पर लीटर, और इस कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोड है इनका जो सेपरेशन है सपोज बच्चों वो ए है, मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारा ए हो गया। तो फॉर दिस कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पर फॉर कंडक्टिविटी
cell. This R is equal to rho into L upon A. Okay, so this L upon A, it is known as cell constant. ये वैल्यू हर एक सेल पे आजकल रेडीमेड सेल मिलते हैं, जब मैंने स्टडी करना है कहीं पे तो सेल कॉन्स्ट की वैल्यू फिक्स होती है और इसको हम डिनोट करते हैं GS स्टार से। और यहाँ पर 1/R हो जाएगा कंडक्टेंस, इसको हम कंडक्टेंस कहेंगे और इसको हम G से डिनोट करेंगे। और बच्चों 1/ρ, देखो R क्या है, R है रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब रुकावटें कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस रुकावटें ज़्यादा होंगी तो फ्लो कम हो जाएगा। इसको हम 1/R को हम कहते हैं कंडक्टेंस, और यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे कैपिटल G से। और 1/, ये है रेजिस्टिविटी। R को क्या नाम दिया हमने, R को हमने दिया नाम रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया कंडक्टिविटी, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, कंडक्टिविटी सेल के लिए, और इसको हम कापा से, ये जो एक सिंबल है K टाइप का, ये कापा से शो करेंगे। तो यहाँ से इसको पूरा रिवर्स कर दीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये तो इसमें बच्चों यहाँ पर ये बड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर हम इसको ये कापा कंडक्टिविटी, फिर से देखिए R क्या है, रेजिस्टेंस, और R का उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिव का रिवर्स हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस को हम यहाँ G से शो करेंगे और इसको हम कापा शो करेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/ρ इंटू 1/L/A। तो 1/R क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस G। 1/ρ क्या हो गया, कंडक्टिविटी का पार्ट। देखो दोनों वर्ड अलग है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। और ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट, तो इसको लिख देंगे 1/G स्टार। तो इस टाइप से एक फॉर्मूला बन गया, एक G या कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो ये क्या हो गया हमारा, G स्टार हो गया, मीन्स ये आपका जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके आते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी है ये किस किस बात पे डिपेंड करती है, कंडक्टेंस क्या होती है, ये किस पे डिपेंड, कंडक्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो कंडक्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस आपके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। और ये जो आपका कंडक्टेंस है ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ और एरिया पे, तो इसी टाइप से हमारा कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा। अच्छा ये क्या हुआ, ये हमारे जो कंडक्टेंस ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये फिक्स हो गया, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो हमारी जो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर के लिए और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के लिए फिक्स हो गया। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों साइमन। कंडक्टिविटी की क्या हो गया, 1/ρ। 1/ρ क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे सीधा सीधा, पर ओम पर सेंटीमीटर। इसको पर ओम को क्या कहते हैं हम, साइमन। तो ये यूनिट हो गई। अब L/A यानी ये क्या है हमारा
सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज पर सेंटीमीटर और पर मीटर यहाँ पर। तो इस टाइप से आप ये यूनिट बना सकते हैं। और आपका लैम्डा एम की यूनिट क्या हो जाएगी, लैम्डा एम हो गया हमारा कापा अपॉन सी। तो कापा की यूनिट क्या हो गई यहाँ से, साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। तो बताइए क्या यूनिट होगी इसकी, यहाँ से लैम्डा एम की यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन इनटू आपका सेंटीमीटर -1 और इनटू लीटर ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई मोल। अच्छा, लीटर और सेंटीमीटर में इंटर कन्वर्जन आप करिए। सेंटीमीटर और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। 1 लीटर का जो मग है आपके पास, उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो लीटर को हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, देखिए इजी वे में जाइए, एस इंटू सेंटीमीटर -1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं ले रहे हम, डिवाइडेड बाय मोल। तो क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये लैम्डा की यूनिट होगी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये तीनों अलग अलग क्वांटिटी होगी, तीनों की यूनिट अलग अलग होगी। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन या पर ओम। ओके, कंडक्टिविटी होगी साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर मीटर। मोलर कंडक्टिविटी होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। एक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा गया कई बार शुरू में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशनशिप है, लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई सी। अब सी अगर हम इसको मोलरिटी में लेते हैं, अगर इसको हम इस यूनिट में लेते हैं, तो देखिए हम कैसे इसका इंटर कन्वर्जन करेंगे। हम इसको कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक का 3.8। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने वेरी इजी, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर क्या दिया है इसमें बच्चों, इसमें दिया है यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन 3.8 जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ले लीजिए और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ओके, तो कापा कितना गिवन है हमें, ये दिया 2.48 इंटू 10⁻⁻2 ले लीजिए साइमन पर सेंटीमीटर, और मोलरिटी दिया है आपको 0.20 m। ओके,
तो सिंपल, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 0.2। अब इसको मुझे तो ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट से आपका ये हो जाएगा 1 2 4। ओके, और ये एक इसको हटा दो यहाँ से 1.24, एक जीरो ऊपर चली जाएगी है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 2 3 तो इंटू 10⁻²। ये आ गया। इसका क्या हो जाएगा साइमन, क्या हो जाएगी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसका आंसर आ गया, वेरी इजी। बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है 3.9 क्वेश्चन को करिए आप, ये आप देख लीजिए एक बार फिर से, और हम 3.9 क्वेश्चन को देखेंगे फिर से। देखिए लैम्डा एम इसको कापा इंटू 1000/m, और कापा जो गिवन है उसको हमने इस तरह से लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। मॉलरिटी गिवन है, आपको लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पुट करके सीधा सिंप्लीफाई करना है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9 को देखते हैं क्या कहता है 3.9 क्वेश्चन। 3.9 क्वेश्चन जो है हमारा ये 3.9 क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस वन। इसमें रेजिस्टेंस गिवन है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस से, है ना, सेम आपका कंडक्टिव सेल है, ये आपकी जो कंडक्टिविटी एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें क्या क्या दिया है यहाँ पर, इसको भी आप देख लीजिए। 3.9 क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो 3.9 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया इन्होंने, ये दिया है मोलरिटी 0.001 m, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मोलरिटी। और क्या दिया है इसमें दिया रेजिस्टेंस 1500 ओम। ओके, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, अब ये कह रहा है L/A हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें कापा की वैल्यू भी इन्होंने दे दिया है कितना, ये दिया है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, अब सीधा आप कर दीजिए इसको, क्या निकालना हमें इसमें, कहाँ से आप सीधे स्टार्टिंग से चले जाइए आप लोग। हमें मालूम है क्या करेंगे हम लोग कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, रख दीजिए वैल्यू। ओके, तो ये क्या होगा, R की वैल्यू है, और 1/रो जो होता है हमारा कापा होता है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो L/A क्या हो जाएगा, L/A इज इक्वल टू R/रो, दैट इज R इंटू 1/रो। ये जो है ना 1/रो दिया इन्होंने, ये हो गया सीधा सीधा, कितना हो गया 1500 इंटू 1/रो की वैल्यू होगी 0.146 इंटू 10⁻³ अब आगे मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये L/A आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा ये L/A जो सेल कांस्टेंट है। अब इसमें कंसंट्रेशन की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए दे दिया इन्होंने। आप सोचिए कंसंट्रेशन कहीं यूज नहीं हुआ, तो किस में आ जाए पर सेंटीमीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस टाइप से हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं इजीली।